اس کی آواز میں اتنی بے بسی اور درد چھپا تھا کہ فہیم حیران ہو گیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ لڑکی اتنی بیمار ہے کہ شاید بول بھی نہ سکے، مگر اس کی دہائی نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ مدد کی طلبگار تھی۔ فہیم آہستگی سے اس کے قریب آ۔ لڑکی کسی قدر ہمت کر کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میں بہت عرصے سے کسی انسان کے آنے کی آس لگائے بیٹھی تھی، کوئی آئے میری اس اذیت سے نجات دلائے۔ اب جب تم آ ہی گئے ہو تو پلیز واپس نہ جاؤ۔ 10 سال بعد کسی نے اس بنگلے میں قدم رکھا ہے، اگر تم بھی چلے گئے تو میں یہاں بستر پر ہی مر جاؤں گی۔ رات کی گہری تاریکی ہر سمت پھیلی ہوئی تھی، ماحول پر سناٹا طاری تھا اور خنک ہوائیں آہستگی سے چل رہی تھیں۔ آدھی رات کا وقت تھا اور ساری دنیا نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ انہی لمحات میں فہیم نے اپنے گھر سے قدم باہر رکھا۔ وہ ایک معمولی سا چور تھا جس کا معمول چھوٹی موٹی چوریاں کرنا تھا، مگر آج جس جگہ کا رخ اس نے کیا تھا وہ ایک پرانا اور سنسان بنگلہ تھا۔ اسے سننے میں آیا تھا کہ یہ بنگلہ گزشتہ 10 برسوں سے خالی پڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے مالکان قیمتی اشیاء چھوڑ کر اچانک کہیں چلے گئے اور کبھی پلٹ کر نہ آئے۔ برسوں پہلے کیا واقعہ پیش آیا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن آج فہیم کا ارادہ پکا تھا کہ وہ اس بنگلے سے کوئی قیمتی چیز نکال کر لے جائے گا۔ چپکے وہ اسی طرف بڑھ رہا تھا۔ فہیم کا تعلق ایک نادار خاندان سے تھا۔ اس کے والدین نیک اور سادہ لوگ تھے، لیکن فہیم ایک بگڑا ہوا نوجوان بن چکا تھا۔ وہ 6 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ کالج کے زمانے میں وہ برے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا اور یوں اسے چوری کی لت لگ گئی۔ جب بھی اس کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ کسی نہ کسی جگہ سے کوئی چیز چرا کر اپنا کام چلا لیتا۔ اس کے دل کو اس کام میں عجیب سا سکون ملتا تھا۔ اس کے ماں باپ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان کا بیٹا چور بن چکا ہے۔ فہیم ظاہری طور پر خوبرو اور پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ وہ گریجویشن کر رہا تھا اور کوئی بھی یہ گمان نہ کر سکتا تھا کہ وہ اس قسم کے کاموں میں ملوث ہے۔ البتہ ایک بات اس کی مثبت عادتوں میں شمار ہوتی تھی، اگر کبھی کسی غریب کو مانگتے دیکھتا تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹتا، جیب میں جو کچھ ہوتا دے دیتا۔ گو کہ اس میں زیادہ برائیاں نہیں تھیں، لیکن چوری کی عادت ایسی تھی کہ چھوٹنے کا نام نہ لیتی۔ جب بھی مالی تنگی آتی وہ باپ کے پاس جانے کے بجائے چوری کو ہی حل سمجھتا۔ اس رات بھی وہ اسی ویران بنگلے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے چوری کے منصوبوں کا کسی سے تذکرہ نہیں کرتا تھا، لیکن بنگلے کے متعلق اسے اپنے ایک دوست سے پتہ چلا تھا کہ وہ نہایت شاندار ہے، مگر گزشتہ 2 دہائیوں سے بند پڑا ہے۔ کسی کو آج تک ہمت نہ ہوئی کہ اس کے اندر جا سکے۔ کہا جاتا تھا کہ بنگلے میں بے حد قیمتی اشیاء موجود ہیں، جو ایک بار اندر داخل ہو جائے اس کی قسمت بدل سکتی ہے۔ فہیم بھی اسی خواب کو سچ کرنے کا ارادہ لے کر وہاں پہنچا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے وہ بنگلے کے گیٹ کے سامنے آ کھڑا ہوا، جہاں مٹی کی تہ نے سب کچھ ڈھانپ رکھا تھا۔ بنگلہ دیکھنے میں بے حد شاندار تھا، جیسے کسی نے بڑے شوق سے بنوایا ہو۔ رنگ و روغن ابھی تک تازہ معلوم ہوتا تھا۔ فہیم نے نظر دوڑائی۔ سڑک سنسان تھی۔ لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر اس نے چھوٹی سی دیوار پھلنگی اور اندر جا گرا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اندر کودتے ہی وہ ایک جھاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس نے دیکھا کہ لان کا بڑا حصہ خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہے اور درخت اونچے لمبے اور ہرے بھرے کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوا، اگر بنگلہ واقعی اتنے سالوں سے خالی ہے تو پتے اب تک سبز کیسے ہے؟ جھاڑیاں بے قابو اور پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک طرف گملوں میں چمیلی اور سرخ گلاب کھلے ہوئے تھے، جن کی مہک رات کے سناٹے میں دل کو چھو رہی تھی۔ فہیم اب بنگلے کے اندر داخل ہو چکا تھا، لیکن ایک عجیب سی لرزہ طاری ہو چکی تھی، کیونکہ اندر کا ماحول کچھ پراسرار سا تھا۔ مرکزی دروازہ اس کے سامنے تھا۔ وہ دبے قدموں اس دروازے تک پہنچا اور جیسے ہی اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر کا منظر واقعی چونکا دینے والا تھا۔ چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ حال کمرہ بالکل صاف ستھرا ہے، نہ کہیں گرد و غبار، نہ کوئی بوسیدگی۔ دیواروں پر بڑی بڑی نایاب تصویریں لٹکی ہوئی تھیں اور میز پر رکھے شو پیسز قیمتی اور خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر فہیم کی آنکھوں میں لالچ کی چمک ابھر آئی، مگر اس کا مقصد کچھ بڑا ہاتھ لگانا تھا۔ بنگلے میں کئی کمرے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اصل خزانہ شاید انہی کمروں میں چھپا ہے۔ آہستگی سے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا جو اوپر کی منزل کو جاتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے پہلا قدم سیڑھی پر رکھا وہ ایک دم چونک گیا۔ اوپر کے آخری کمرے کی بتی روشن تھی اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ منظر انتہائی عجیب تھا، ایک ایسا بنگلہ جو باہر سے تالا بند تھا اور اندر روشنی جل رہی ہے۔
फहीम का दिल जोर से धड़कने लगा। कोई तो है अंदर। अब वो सहम गया था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो इसी रोशन कमरे की जानिब बढ़ने लगा। बिलाखिर वो दरवाजे के बाहर आ खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही इसने अंदर झांका, आंखों के सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था, क्योंकि कमरे में एक बिस्तर रखा था जिसे देखकर फहीम की जान हल्क में आ गई थी। इस पर एक निहात हुसैन लड़की लेटी हुई थी जो शदीद बीमार दिखाई दे रही थी। एक सुनसान और बरसों से वीरान पड़े बंगले में किसी लड़की की मौजूदगी फहीम के लिए निहायत चौंका देने वाली बात थी। वो लड़की बिस्तर पर पड़ी करा रही थी जैसे शदीद तकलीफ में हो। इस पर असरार और वीरान जगह पर एक नाजुक लड़की को देखकर फहीम के रूंगटे खड़े हो गए। इसका वहां रुकना मुश्किल हो चुका था। वो जैसे ही पलटने लगा, अचानक लड़की की आवाज ने इसे रोक दिया। रुक जाओ, खुदा के वास्ते मेरी मदद करो। मैं कब से किसी का इंतजार कर रही थी। आखिरकार तुम आ गए हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये बातें सुनकर फहीम का दिमाग सुन हो गया। फिर वो पूछ बैठा, ये बंगला तो 2 दहाइयों से बंद पड़ा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की के चेहरे पर आंसू बहने लगे। वो रोते हुए कहने लगी, मेरे चचा ने मुझे कैद कर दिया था। वो सब लोग तो यहाँ से जा चुके, लेकिन मैं इंतकाम का निशाना बन गई। मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाया था, इसीलिए मुझे भूखी प्यासी यहाँ कैद कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ मर जाऊंगी, और देखो आज मैं वाकई मौत के दहाने पर हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये सुनकर फहीम शशदर रह गया। इसने मजीद जानने की कोशिश की। तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? और इतने सालों तक कोई जिंदा कैसे रह सकता है? लड़की ने कमजोरी के बावजूद एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो बोली, मेरा नाम फातिमा है। अभी ये सब जानना जरूरी नहीं, बस तुम वादा करो कि मेरी मदद करोगे। इसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। फहीम इसे खामोशी से देखता रहा। वो इस बंगले में चोरी की नीयत से आया था, मगर अब सारी सोचें पीछे रह गई थीं। इसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ क्या करना है? तो फातिमा जल्दी से बोली, मुझे कुछ फल और मिठाइयाँ ला दो ताकि मुझे ताकत मिले। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। ये सुनकर फहीम एक पिल को हैरान हुआ। इसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में मदद का जज्बा था। वो पलटने लगा तो लड़की ने फिर आवाज दी, रुक जाओ, मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम एक चोर हो, यहाँ चोरी करने आए हो। फहीम हैरान रह गया। वो सोचने लगा, लड़की को ये कैसे पता चला? इसके चेहरे पर हैरत देखकर फातिमा मुस्कुरा कर बोली, मुझसे पहले भी कई लोग यहाँ चोरी के इरादे से आए, मगर सब मुझे देखकर भाग गए। कोई कामयाब ना हो सका। तुम वाहिद हो जो मेरे करीब आया है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ये कहते ही इसने तकिए के नीचे से भारी रकम निकाली और फहीम की तरफ बढ़ाई। वो शशदर रह गया। लड़की के पास खेरों पैसे थे। इसने वो पैसे लिए और बाजार से मिठाइयाँ और फल लाने निकल पड़ा। मगर इसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये लड़की है कौन और इतने बरसों से कैसे जिंदा है? जब वो सामान लेकर वापस आया तो फातिमा पहले से इसका इंतजार कर रही थी। वो अब भी इसी कमरे में थी। इसके लंबे सियाह बाल बहुत दिलकश लग रहे थे और बीमार होने के बावजूद इसका चेहरा चमक रहा था। फहीम इसे खामोशी से देखता रहा। लड़की ने लाई हुई मिठाई और फल जल्दी जल्दी खाए, जैसे बरसों बाद कुछ खाने को मिला हो। वो फहीम को देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, क्या तुम रोज मेरी इसी तरह मदद करोगे? जब तक मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हें एक राज बताऊंगी, ऐसा राज जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। फहीम ये सुनकर हक्का बका रह गया। चोरी का इरादा भूल चुका था। वो खाली हाथ जा रहा था, लेकिन दिल में एक अनजान कशिश लिए। इसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। ये लड़की कौन है? यहाँ अकेली कैसे रह रही है? मगर दिल पर बस इसका चेहरा छाया हुआ था, फातिमा का। अगले दिन वो कॉलेज गया, मगर दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दोस्तों से बात ना की, बस खामोश बैठा रहा। रात का बेताबी से इंतजार करता रहा। इसने अपने वालिद से थोड़े से पैसे मांगे, जिन्होंने इसे डांट कर कहा, अब तुम्हें कमाना चाहिए, पढ़ाई छोड़कर काम करो, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। भाई भी मजदूरी कर रहे थे, लेकिन फहीम को मजदूरी से नफरत थी। इसके दिल में हमेशा से कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश थी। वो कोई कारोबार करना चाहता था, कुछ ऐसा जो इसकी जिंदगी बदल दे। इसके अब्बा ने इसे कुछ पैसे दे दिए थे, जिन्हें लेकर वो फौरन दुकान पर गया और चुपके से मिठाई और फल खरीद लाया। आज रात भी इसके दिल में वही ख्याल था, वही पुरस्कार लड़की जो कल रात इसे बेहद कमजोर और बीमार नजर आई थी।
फहीम सोच रहा था कि वो लड़की ना सिर्फ बहुत खूबसूरत है बल्कि इसके दिल के करीब भी हो गई है। वो खुद को बदलता महसूस कर रहा था। चोरियां करना, झूठ बोलना जैसे सब कुछ माजी बन चुका था। अब इसके दिल और दिमाग पर सिर्फ इस लड़की की शबीह छाई हुई थी। रात के 11 बज चुके थे जब वो दबे पाँव घर से निकला। पूरा घर सो रहा था। वो सड़क पर खामोशी से चलता इस बंगले की तरफ जा रहा था जिसे अब वो डरावना नहीं बल्कि कशिश भरा महसूस करता था। जैकेट की जेब में फल और मिठाई छुपाए वो चाहता था कि आज वो लड़की खुश नजर आए। शायद वो बीमार है, कमजोर है, यही सोचकर इसने इसके लिए ये सब लाया था। बंगले के सामने पहुंचकर इसने इधर अलिफादेर देखा। सन्नाटा ही सन्नाटा था, लेकिन इसे अब कोई खौफ नहीं महसूस हो रहा था। वो आराम से दीवार फलांग कर अंदर कूदा और आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन ऊपर इस कमरे से रोशनी आ रही थी, उसी कमरे से जहां कल वो लड़की थी। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन इसके कदम मजबूत थे। सीढ़ियां चढ़ता हुआ वो ऊपर पहुंचा और कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोला। जो मंजर इसके सामने था वो हैरत अंगेज था। लड़की कद आईने के सामने बैठी थी। इसके लंबे बाल जमीन पर बिखरे हुए थे और वो उन्हें संवार रही थी। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी खुशी में गुम हो। अचानक वो बोली बगैर पलटे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी फहीम। मुझे यकीन था तुम आओगे। फहीम चौंक गया। वो हैरान था कि ये लड़की इसका नाम कैसे जानती है। इसने तो कभी इसे अपना नाम बताया ही नहीं था। वो नजरें झुकाए बोला, मैं आपके लिए फल और मिठाई लाया हूँ। लड़की ने पलटकर इसे देखा। इसकी गहरी आंखें फहीम की रूह में आतर गईं। वो नरमी से मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत अच्छे हो। देखो तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। कल तुम्हारी मदद से मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। अगर तुम यूं ही मेरा साथ देते रहे तो एक दिन मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। उनके आने से पहले फहीम को इसकी बातों की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इसके लहजे में जो दर्द था वो साफ महसूस हो रहा था। लड़की ने इसे बैठने का इशारा किया। वो इसके सामने बैठ गया। मेरा नाम फातिमा है, इसने धीरे से कहा। मैं इस बंगले के हर राज से वाकिफ हूँ। लोग यहाँ के राज जानने आते हैं मगर नाकाम लूट जाते हैं। लेकिन तुम फहीम, तुम मुख्तलिफ हो। मुझे लगता है तुम मेरी मदद कर सकते हो। फहीम की आंखें खुशी से चमक अलिफाट है। एक खूबसूरत लड़की इस पर भरोसा कर रही थी। वो बोला, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? कौन है जिसने तुम्हें कैद किया? इतने साल तुम कैसे जिंदा रहे? खाना पानी सब कुछ कैसे मुमकिन था? ये सुन कर फातिमा जोर से हंसने लगी, लेकिन इसकी हंसी में एक अजीब सी उदासी छपी हुई थी। अचानक इसकी आंखों की चमक खत्म हो गई और चेहरे पर एक गहरी संजीदगी छा गई। मैं बगैर खाए पिए भी जिंदा रह सकती हूँ फहीम, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जनुजादी हूँ। और मुझे यहाँ कैद किया इस आमिल ने जो इस बंगले में अपने खानदान के साथ रहता था। वो दम बखुद इसे तकने लगा, जैसे किसी ने इसके कदम जकड़ लिए हों। वो भागना चाहता था मगर कुछ था जो इसे रोके हुए था। फातिमा ने नरमी से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी ताकत खत्म हो चुकी है। मैं इतनी कमजोर हूं कि बाहर भी नहीं जा सकती। इस आमिल ने मुझ पर एक ऐसा अमल किया है जो मेरे तमाम इख्तियारात छीन चुका है। फहीम ने गहरा सांस लिया और अपने अंदर के खौफ पर काबू पाया। मुझे बताओ इसने ऐसा क्यों किया? इसने धीमी आवाज में पूछा। फातिमा की आंखों में नमी आतर आई। वो बोली, वो आमिल अपने फायदे के लिए हम जनवत को काबू में करता था। इसने मेरे कबीले पर हमला किया और मुझे कैद कर लिया। मैं इसके अमल का शिकार बनी और तब से यहाँ कैद हूँ। आमिल का दिल मुझ पर आ गया था। वो मुझसे कहने लगा कि मैं इससे शादी कर लूँ। मैं हैरान रह गई थी। मैंने इसे कहा, मैं किसी इंसान से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं बहुत खूबसूरत थी और वो चाहता था कि मैं इसकी बीवी बन जाऊँ। वो कहने लगा, अगर तुम मेरी बीवी बन जाओगी तो हम दोनों मिलकर लोगों के मसले हल करेंगे, मैं खूब दौलत कमाऊंगा। इसकी ये बातें सुन कर मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने सख्ती से कहा, मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगी। ये सुन कर आमिल को बहुत गुस्सा आया। इसका एक खानदान था। वो पहले ही 2 शादियां कर चुका था और उन बीवियों से कई बच्चे भी इस बंगले में रहते थे। फिर इसने मुझे बंगले के एक कमरे में कैद कर दिया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, मुझे आज़ादी चाहिए थी। लेकिन आमिल ने मुझ पर एक खतरनाक अमल करके मुझे मुकम्मल तौर पर कैद कर दिया। मेरी चीखों की आवाजें बंगले में गूंजती थीं, जिन्हें सुन कर इसके घर वाले परेशान हो गए थे।
वो आमिल से कहने लगे, हम इस बंगले में नहीं रह सकते, यहाँ से अजीब चीखों की आवाजें आती हैं, हमें खौफ महसूस होता है। आमिल ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई राकन्ने पर राजी ना हुआ। आखिरकार इसका पूरा खानदान ये बंगला छोड़कर चला गया। अब आमिल तन्हा रह गया था और गुस्से में भरा हुआ मेरे पास आया। वो चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हारी वजह से मेरा खानदान मुझे छोड़ गया, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस कमरे में कैद कर दूंगा। इसने एक और अमल किया और कहा, मैं भी ये बंगला छोड़ कर जा रहा हूँ, तुम कभी इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकोगी। फिर वो हमेशा के लिए चला गया। अब मैं तन्हा रह गई थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कुछ भी करने के काबिल ना थी। आमिल ने मुझ पर एक ऐसा सहर कर दिया था जिसने मेरी सारी ताकतें खत्म कर दी थीं। मैं अपने किसी जनु कबीले वाले से भी राब्ता नहीं कर सकती थी। अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो फहीम। फहीम ये सब कुछ सुनकर दंग रह गया। इसने जनुजादी से कहा, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा। फातिमा कहने लगी, ये अमल 10 साल पुराना है, लेकिन इसका तोड़ एक ही है। यहाँ से कुछ फासले पर एक कब्रिस्तान है जहाँ एक पुराना बरगद का दरख्त है। इस दरख्त के नीचे एक अजीब सा सफेद पौधा उगा हुआ है, जो भी इसे छूता है वो गायब हो जाता है। फहीम ने चौंक कर पूछा, तो फिर मैं इसे कैसे छूऊंगा। फातिमा कहने लगी, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगी। तुम्हें इस पौधे के पत्ते लाकर देने होंगे। अगर मैंने वो पत्ते खा लिए तो मेरे ऊपर से ये अमल खत्म हो जाएगा। वो इसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। फहीम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसने वादा किया कि वो ये काम जरूर करेगा। अगली रात फहीम चुपके से कब्रिस्तान गया। वहाँ गहरी तारीकी थी और बरगद का दरख्त बहुत पुरस्कार लग रहा था, लेकिन फहीम पर फातिमा की मोहब्बत का जादू छाया हुआ था। वो उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। फिर इसे वो सफेद पौधा नजर आ गया, लेकिन जैसे ही वो इसे छूने लगा, अचानक इसे एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। ये आवाज इस जनु की थी जो इस दरख्त पर रहता था। फहीम ने बहादुरी से कहा, मैं जनुजादी की मदद करना चाहता हूँ, इसे आज़ादी चाहिए, क्या तुम इसकी मदद नहीं करोगे। और फिर फहीम ने आराम से वो पत्ते तोड़ लिए। थोड़ी देर बाद वो जनुजादी फातिमा के सामने मौजूद था। जैसे ही इसने वो पत्ते खाए, इस पर से अमल का असर खत्म हो गया। अब वो आजाद थी और इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। फातिमा कहने लगी, तुमने मेरी मदद की है फहीम, तुम इनाम के हकदार हो। इस आमिल का खजाना जो इसने लोगों से लूटा था, वो इस बंगले के तहखाने में दफन है। जाओ और इसे हासिल कर लो, तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। ये कहकर वो मुस्कुराई और फिर अचानक वो फहीम के सामने से गायब हो गई। फहीम वहीं खड़ा रह गया। वो खजाने के लिए नहीं आया था, इसका पेशा तो छोटी मोटी चोरियों का था। लेकिन फातिमा की मोहब्बत में वो सब कुछ भूल चुका था। इसका दिल चाह रहा था कि काश वो इसे बता पाता कि वो इससे मोहब्बत करने लगा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ऐसी मजीद दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में।